A very warm welcome to everyone on this platform of All India Debating Society. Today, in this session of interaction, we have with us Richa Ranjan, an inspiring personality whose life journey till now has been commendable and teaches us selflessness and dedication towards both nation and nature. She completed her BTech from IIT Roorkee. She also has 11 years corporate experience and she resigned as vice president of Morgan Stanley. Currently, she is an naturalist who applies her scientific and traditional knowledge aiming towards betterment of nature. It is our immense pleasure to have you here today with us, ma'am. Thank you so much. Namaskar. Also, we have with us Mr. Shivendu Kumar Mishra, who will be joining us in this session. Ma'am, my first question to you is from Vice President of an American multinational investment bank to a naturalist based in India. What motivated you for this big step, ma'am? So that's a very good question. So obviously, by education, I'm an engineer, and I was in the corporate for around 11 years. Um, so it's hard to pinpoint one particular thing which made me start my journey. Um, so I had my own health issues, some of which were recurrent, some were acute, some were chronic, and in general, there's so many issues at large in the society, and health and happiness are so elusive. Even though there's so many facilities at our disposal now, so much of advancement that we've made, so much of technology that we now have, yet there are so many issues. Um, each seems to increase by the day. So all that kind of made me somehow think that we are something. There's something that we are missing out on, something somewhere that we are going wrong, and that motivated me to start this journey. At the beginning, I didn't have much clue. I was just trying to understand what is it that we are doing wrong. In process, I realized that our ancestors always kept health and happiness central to whatever they did, and that motivated me further to understand what were the things that they were doing and how was it that even though we weren't advanced in the way we now define development and advancement, they were still much more happy and healthy. So that's how I tried to understand what that traditional wisdom was. And coming from science background, I try to leverage my understanding of science also to understand the rationale behind the things that they did, and how was it that they were able to be so healthy and happy, and where is it that we are making the mistakes and going wrong. So that was somewhere where I started this journey, and it's been a very enriching journey, I must say. The journey is still on. I think there's a long way to go, uh, but nevertheless, I think I as I said, it's been a very enriching journey for me. And I obviously, I've been writing about these things for some time. I started this journey around 5 years ago, and I've been writing about it for some time now. The corona pandemic has made people take more note of what I've been writing, and trying to spread that message. So my endeavor is at this point is really to spread the message. So traditional wisdom is not written anywhere in a book. People generally ask me, is there something where, is there a book or somewhere that I can read about? So it's not written anywhere. Over past few generations, for whatever reasons, we ridicule that traditional wisdom, and we haven't been passing it the way we were doing earlier. So it's been a little difficult for me also to try and get to that wisdom. However, whatever I've been able to understand and comprehend,
I'm only just trying to spread that message as of now. Okay. Ma'am, you talked about human health. So my question would be, earlier the average lifespan of human was comparatively more than what it is right now. So what do you think, what is responsible for that? So as I said, health and happiness was central to how our ancestors lived. Whether it was what they did, what they thought, what they heard, what they saw, everything was centered around health and happiness. The other very interesting understanding they had was that they never lived for today. They always made sure that tomorrow and day after tomorrow are also taken care of, which we have kind of started to overlook in our consumerist and capitalist world of today. We live for today. We don't care what we are doing to our earth, to our air, to our soil, etc. We are just living for today. Now, if as I said, everything that they were doing had health and happiness central to it. Now, maybe just to give an example. So let's talk about, say, agriculture. Now, so there are animals in the jungle. Now, all the animals, they know what food is meant for each animal. Now, it's not like every animal is eating everything available in the jungle. So obviously, the animals are close to nature. The animals are passing on the traditional wisdom that they have. They're still passing it on diligently, not like us where we have stopped passing and we've stopped listening. So there, the food choices our ancestors made were based on their traditional wisdom. They knew what food was good for them, what was not good for them. We've moved very away from all that. Now our choices are now based on various influences that we have, be it advertisements, or influences, or somebody comes and says this is something that's helped me. We all start eating that. So that is now basically defining what our food will be, instead of all the traditional wisdom that we had. Jungle is nature. So प्रकृति है, वो जंगल बनाती है. मनुष्य कृषि करता है, प्रकृति कृषि नहीं करती है. तो मनुष्य जो हमारे पूर्वज थे, वो इतना, उनको प्रकृति की इतनी समझ थी कि वो जो कृषि करते थे, वो सुनिश्चित करते थे कि कृषि जो है वो जो कृषि है वो जंगल के सिद्धांतों पर ही आधारित हो. So that made agriculture by default organic, because everything by default was organic. वहाँ कहीं भी रसायन का उपयोग नहीं होता था. The seeds were natural seeds. उनको modify नहीं किया जाता था, lab में कृत्रिम नहीं बनाया जाता था. Now we have digressed so far from that traditional wisdom that today everything that we're doing in agriculture is unnatural. Be it the soil, we're putting chemical fertilizers, pesticides, fungicides, herbicides, insecticides, all of which are chemical. The seeds itself, we've made all that seed. We've genetically modified the seeds, or we've then induced hybridization of the seeds. तो हम लोग अब प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं. तो जो हमारा खान पान जो बिल्कुल प्राकृतिक होता था, वो अब बिल्कुल दूसरी छोर पे अप्राकृतिक हो गया है. और ये बहुत बड़ा वजह है कि हम लोग उसको we have to now call it organic farming. अब कोई भी अगर कहीं पे प्राकृतिक नेचुरल खेती करता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक का विशेषण देते हैं. Whereas everything was by default organic. There was no visheshan called organic. By default was organic. So we have come so far just in one aspect, agriculture, and food is so important. We are what we eat.
we overlook the importance of food now, and we get influenced by uh, all the influences that are around us, and get moved so far from the tradition. Ma'am, talking about farmers, a large majority of Indian population depends upon agriculture for their living. So, as a naturalist, what would be your key advice for them and for the nature for their mutual betterment and upliftment? Like you said, organic farming, but ma'am, in recent times, organic farming isn't as effective as inorganic farming. You need to use pesticides and fertilizers for better yield and better income. What would be your advice as a naturalist for betterment of both nature and farmers? So यहाँ पर हमने एक assumption किया है कि organic farming doesn't work. Your question itself has that assumption. Now, I think we need to question that assumption. वो हमने एक धारणा बना ली है जब सदियों से ये खेती ऑर्गेनिक रही है, और ह्यूमन होमो सेपियंस एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वी हैव सर्वाइव्ड टिल दस फार. तो ये एक जो हमने धारणा बना लिया कि ये नहीं, ये इट्स नॉट वर्केबल सोल्यूशन, उस धारणा को हमें क्वेश्चन करना होगा. क्योंकि जब से हमने वो धारणा शायद बनाई है, तब से बहुत बड़े पैमाने पे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबका पतन हो रहा है. और शायद वो धारणा कहीं ना कहीं बहुत बहुत गलत है. आप उदाहरण के लिए देखिए, विदर्भ की हम लोग बात करते हैं. विदर्भ में बीटी कॉटन जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उसका उपयोग शुरू हुआ था कुछ एक दशक, दो दशक, लगभग दो दशक पहले. एक जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लेते हैं, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उसके साथ हम केमिकल्स डालें. यूरिया है, पेस्टिसाइड है, एक्सेट्रा, वो हमें केमिकल रसायन डालना ही पड़ता है. धीरे धीरे क्या होता है, जो मिट्टी की अपनी शक्ति होती है वो छीन होने लगती है. तो जब मिट्टी की शक्ति छीन होने लगती है, तो हमें और ज्यादा उसमें रसायन डालना पड़ता है. तो हर वर्ष वो रसायन की मात्रा बढ़ते जाती है. कुछ समय पहले वहां पर ऐसा न्यूज आया था कि जो पेस्ट्स हैं, जिनके लिए वो जिसके लिए बीटी कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था और जो पेस्टिसाइड उसमें यूज किया जाता था, वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गए हैं. तो ये होना है. ये देखिए, प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति से ऊपर जाकर नहीं है. प्रकृति की जो शक्ति है, उस शक्ति को हमें समझना होगा. वो शक्ति से हम इतने दूर आ गए हैं कि अब हम उस शक्ति के विरुद्ध चलने लगे हैं. अब वो जब खुद पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गए हैं, और मिट्टी की अपनी शक्ति, मिट्टी में प्राण होता है, उसमें माइक्रोब्स होते हैं. जितना हमने उसमें रसायन डाला, वो माइक्रोब्स खत्म होके मिट्टी की अपनी शक्ति खत्म हो गई. मिट्टी अब धूल बन गया है. पेस्ट जो है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गए हैं. जो आप जो सीड्स डाल रहे हैं, वो अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये तो एक तरह ये कृत्रिम बीज हैं. जो आपके होता क्या है इस क्रम में कि आपके जो अपने प्राकृतिक जो इंडिजिनस देसी सीड्स थे फॉर कॉटन, वो अब नहीं मिलेंगे. क्योंकि अब जो देसी सीड्स होते थे, द फार्मर्स यूज्ड टू सेव ओवर जनरेशंस, वो उन्होंने करना छोड़ दिया, क्योंकि वो खरीद करके ये कृत्रिम बीज लाने लग गए. आपकी मिट्टी की शक्ति चली गई. आपके जो पेस्ट है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गया. आपका जो अब ये क्रॉप है ये नष्ट होने लग गया. तो आप एक चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं. और क्या होता है, देखिए आप वहां पे ये कैंसर, किडनी फेलियर के बहुत अब केसेस आने लग गए हैं. न्यूज में रिपोर्ट होने लग गए हैं. ये एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होने लगता है. अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने पेज पे इस विषय पर लिखा था कि गुजरात में भी अब कैंसर के इश्यूज हो रहे हैं. पंजाब हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से, जब एक बार वो कृत्रिम बीज और रसायन की खेती वहां शुरू हुई, तो वहां पे कितना नुकसान हुआ. और कैंसर ट्रेन चलता है पंजाब में, जो पंजाब से वो राजस्थान वो ट्रेन जाती है. आप ये सोचिए कि कितने वो जो कृषक है, उनको हम कितने
एक खाई में बिल्कुल ढकेल रहे हैं। और जैसा मैंने अभी लिखा था अपने पेज पे, तो एक जो पाठक थे उन्होंने बताया कि बोध गया के समीप एक गांव है जहां से जो बोध गया में होटल्स हैं उनके लिए वहां पे सब्जी उगाए जाते हैं, और वो चूंकि वो कृत्रिम बीज वाले सब्जी हैं, वो हाइब्रिड सब्जी हैं, तो उनके लिए वो बहुत रसायन इस्तेमाल किया जाता है। और वहां अब बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकलांगता बहुत हो रही। वो जो इस गांव की वो बात कर रहे थे, मुझे उसका वो बता रहे थे कि वहां पे जन्म से या बचपन से लोग बच्चों को शारीरिक मानसिक विकलांगता हो रही है। तो हमें समझना होगा, देखिए मनुष्य जो है पंचभूतों से बना है। पंचभूत क्या होता है? धरती है, आकाश है, हवा है, जल है, अग्नि है। तो हम पंचभूत प्रकृति है। अगर प्रकृति को कोई भी हानि होती है, पंचभूतों को जो हानि हो रही है, वो हानि हमें हो रही है, वो हानि किसी और को नहीं हो रही है। जब हम रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि क्षति हमें हो रही है, क्षति कुल्हाड़ी हम अपने पैर पे मार रहे हैं। सिर्फ कृषक ही नहीं मर रहे हैं या कृषक ही नहीं इतने बुरे हाल में जा रहे हैं, जो उस रसायन वाला खाना खा रहा है, आप उसकी हालत सोचिए। आज हम समझ रहे हैं कि बीमारियां कितनी हो रही हैं। आज कोरोना में बताया जा रहा है कि हमें इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी कहाँ से आए? इम्यूनिटी मार्स, सैटर्न, जुपिटर से नहीं आने वाला है। इम्यूनिटी जो प्रकृति में हम रह रहे हैं वहीं से आने वाला है। अगर हम प्रकृति को ही नष्ट कर देंगे तो वो इम्यूनिटी हम कुछ भी कोशिश कर ले वो हमें नहीं मिलने वाला है। तो ये जो मूल में इसमें जो बात है वो हमें समझना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर हो रही है, हम शायद उसको देखना नहीं चाह रहे हैं। हम एक वैसी एक हालत हो गई है कि शायद हमें जो दिखाया जा रहा है हम वो देख रहे हैं, पर जो यथार्थ है हम उसको देखने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए हम ये धारणा बना लेते हैं, जो प्रिमाइस हम बना लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ये धारणा हमने बना ली। क्यों बनाई? आप इसके मूल में जाइए और समझिए। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी लोग बहुत इससे जो इसको दिन रात इसको फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है। किडनी फेलियर, कैंसर, तो बहुत कम उदाहरण है। जैसे मैंने बताया, पूरे गांव में मानसिक और शारीरिक विकलांगता हो रही है बच्चों में। तो आप ये सोच लीजिए कि वो भविष्य कितना भयावह होगा। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो सिर्फ आज का नहीं सोचते थे, वो कल का भी सोचते थे, परसों का भी सोचते थे। हम तो आज का भी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। जो आज है हमारा, हम उसको भी गवा रहे हैं। कल और परसों तो शायद बहुत ही भयानक होगा। I would like Shivendu Kumar Mishra ji to ask the next question, please. धन्यवाद ऋचा जी। जैसा कि आज आधुनिकता के दौर में हमारा कृषि क्षेत्र भी आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो सब्जी जो फल हमको एक खास मौसम में हम लोग को उपलब्ध होता था, आज लगभग हर एक मौसम में हम सभी के बीच में उपलब्ध हो रहा है। तो वे सब्जी, वे फल हमारे सेहत के लिए कितने फायदेमंद है और कितने हानिकारक है? तो जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि ये आधुनिक हो रहा है कृषि, और चूंकि आधुनिक हो रहा है इसलिए हम जब चाहें हम फूल गोभी खा सकते हैं। हालांकि देखिए, फूल गोभी अगर ठंड की सब्जी है तो वो एक कारण है कि वो ठंड की सब्जी क्यों है। टमाटर विंटर्स में नहीं होते हैं तो वो एक कारणवश है कि वो विंटर्स में नहीं होते हैं। वो कारण में हमारा हित छुपा होता है, हम वो भूल जाते हैं। प्रकृति हम सब की जननी है। जो हम प्रकृति माता कहते हैं, हम धरती माता कहते हैं, पर हम प्रकृति और धरती को अपनी माँ समझते नहीं है, मानते नहीं है, और ट्रीट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं माँ जैसा। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, माँ हमेशा भला ही चाहेंगी बच्चों का। तो हमें समझना होगा कि अगर प्रकृति की सोच है कि टमाटर ठंड में नहीं हो तो उसमें हमारी ही भलाई है। आज हम प्रकृति से इतनी दूर आ गए हैं कि हम प्रकृति की जो वो समझ है और जो सोच है उसको समझना नहीं चाह रहे हैं, उसको हम वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बहुत दुखद परिस्थिति है। और परिणाम भी इसके बहुत भयावह हो रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, जैसे ठंड में जो सब्जियां होती हैं वो ज्यादातर हैं जो जिनसे हम सूप वगैरह बनाते हैं, जो ये
एक तरह की सब्जी होती है। जो गर्मी में जो सब्जी या फल जो होंगे वो आपको होंगे जिसमें पानी का की मात्रा अधिक होती है, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, लौकी, कद्दू, दूध इत्यादि, जो जिसमें पानी की मात्रा अधिक है। जो बारिश में जो फल आपको मिलेंगे उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। देखिए प्रकृति कितना कुछ हमारे लिए कर रही है, हमको उसको वापस पुनः उससे जुड़ना है, उससे समझना है। आज जो सब्जी अगर गर्मी की सब्जी है वो हम ठंड में खाएंगे तो हानि हमारा ही। हमने वो बीज को तो मॉडिफाई कर दिया, हमने कहा हमने विकास कर लिया, पर वो विकास नहीं है, वो तो अविकास है। जो प्रकृति ने विकास करके वो बीज को ऐसा बनाया कि ये ठंड में होगा, ये गर्मी में होगा, वो हमने उस प्रकृति के उस सोच और भावना को नहीं समझा है। और हमने कहा कि नहीं हम आज क्या हो रहा है ना कि हमने जो जितने हमारे परिभाषाएं थी, मापदंड थे, उनको हम ऊपर का नीचे कर रहे हैं, बिल्कुल उसको जिसको शीर्षासन कहते हैं वो करके हमने रख दिया है। तो जो चीज जो पहले सही था उसको आज हम गलत मानते हैं, जो चीज गलत था उसको सही मानते हैं, और हमने ऐसे कह दिया कि ये विकास है। तो कहीं ना कहीं उससे हमें वापस जुड़ना होगा, समझना होगा। सिर्फ ये कह देना कि ठीक है आज मनुष्य विकास कर लिया है इसलिए वो जो गर्मी की सब्जी है उसको ठंड में भी मिलेगी, ठंड की सब्जी है वो गर्मी में भी मिलेगी, ये मेरे ख्याल से ये विकास नहीं है। हानि हमारे ही हो रहा है, क्षति हमें हो रही है। आज हम अपने बच्चों को गर्मी का फल अगर ठंड में खिला रहे हैं तो नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। वो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल उससे समझना होगा, जुड़ना होगा। और हो भी रहा है, हम देख भी रहे हैं कि परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं, जो ये हम अपने पूरे खान पान को उलट का पुलट करके रख दिए हैं। तो वो उसे हमें समझना होगा पुनः। इसी से जुड़ा एक सवाल और मेरा है ऋचा जी, जैसे आपने अभी हाइब्रिडाइज सीड्स का इफेक्ट बताया, उसी में अब हमारे समाज में गायों को भी हाइब्रिडाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या विभिन्न पॉलिसीज के द्वारा, गायों को भी हाइब्रिडाइज किया जा रहा है। और इसके हाइब्रिडाइज गाय के प्रोडक्ट हमारे लिए कितने इफेक्टिव हैं या अनइफेक्टिव हैं, इस पर थोड़ा सा अपना विचार दें। जी देखिए मैमल्स होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं? वो जानवर जिनको मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। लगभग 6400 स्पीशीज है मैमल्स की, प्रजातियां हैं मैमल्स की। इसका मतलब कि 6400 ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। एक मनुष्य है जो दूसरे जानवर का भी दूध पीता है। अब ओवर जनरेशंस ऐसी क्या वजह थी कि हमारे पूर्वज 6400 मैमल्स का दूध नहीं पीते थे और सिर्फ एक देसी गाय का दूध पिया करते थे। तो उस समझ से हम इतनी दूर आ गए कि आज कोई भी जानवर का दूध बेचा जाता है, हम उसे जाकर के खरीद लेते हैं। जो बॉस इंडिकस स्पीशीज थी, जिसे हम देसी गाय कहते हैं, जैसे रेड सिंधी हुआ, साहिवाल है, गिर है आदि, जो हमारी देसी गाय है, अलग जगह की अलग अलग गाय होती थी, उन्हीं का दूध पूर्वज पीते थे। जैसे रेगिस्तान वगैरह में शायद ऊंट वगैरह का भी पिया जाता था, कुछ हर जगह का अपना होता था, पर गाय में अगर बात किया जाए तो देसी गाय का पिया जाता था। ये जो बॉस, टॉरस इत्यादि जो स्पीशीज है, इनका दूध नहीं पिया जाता था। अब जैसे जर्सी है, जर्सी एक आइलैंड है यूके में, तो वहां की वो नस्ल है, वो बॉस इंडिकस स्पीशीज नहीं है, वो बॉस टॉरस स्पीशीज है। होल्स्टीन फ्रीजियन, ये भी हमारे यहाँ की नस्ल नहीं है। तो इनका दूध हमारे पूर्वज नहीं पीते थे। तो क्या वजह थी कि नहीं पीते थे? दूध भी उसको अमृत तुल्य माना जाता था और अमृत की ही मात्रा में पिया जाता था। आप देखिए चरणामृत पिया जाता था, चरणामृत में 2 चम्मच दूध डाला जाता है। ये आज जो हम दूध सुबह से रात दूध पीते हैं, कम से कम 1.5-2 लीटर एक इंसान आसानी से 1.5-2 लीटर दूध पी लेता होगा। 1 लीटर तो पी ही लेता होगा, वो चाहे वो चाय है, फिर खीर है, फिर वो पनीर है, फिर दही है, फिर करते करते हो ही जाता है आज हम जितना पी रहे हैं। लेकिन हम किस जानवर का दूध पी रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप सोचिए कि हम इसे विकास कहने लग गए हैं कि आज चूंकि हम
2 लीटर दूध पी रहे हैं इसलिए विकास है। जो हमारे पूर्वज हैं वो शायद 2 चम्मच चरणामृत पीते थे और खेतों में काम कर लेते थे। आज हम 2 लीटर दूध पीते हैं और हमें 25 साल में स्लिप डिस्क हो जाता है, तो हम उसे विकास कह रहे हैं। हम इतने दूर आ गए हैं प्रकृति से कि हम ये भी नहीं समझ रहे हैं कि हम किस जानवर का दूध पी रहे हैं, ये मनुष्य के लिए बना भी है कि नहीं। अब देखिए, वो जो ये बॉस टॉरस इत्यादि जो स्पीशीज है, इनके दूध को A1 मिल्क कहा जाता है और जो देसी गाय से जो दूध आता है उसको A2 कहा जाता है। और अब विज्ञान भी इस ओर इंगित कर रहा है कि जो A2 मिल्क जो देसी गाय से आ रहा है, वो तो उसमें जो प्रोटीन है वो मनुष्य के शरीर में जाके जो लाभदायक अमाइनो एसिड्स वगैरह बनता है, पर जो A1 मिल्क है, जो बाकी ये जो विदेशी नस्ल की गाय है, उसका दूध जाकर के वो उसकी संभावना है कि वो विष बने, वो एक ओपियोइड बने जो अफीम की तरह जिसका काम होता है शरीर में। तो हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम दूध पी रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। तो चूंकि वो ओपियोइड की तरह बन रहा है, उसका प्रभाव अफीम की तरह होता है। अफीम एक नशीला पदार्थ है, तो हमें उसकी एक तरह से लत लगने लगती है। और जो हम जिस मात्रा में आज दूध को पी रहे हैं विभिन्न प्रकारों से, चाहे पनीर हो, रसगुल्ला हो, जो भी हो, तो हमें एक क्रेविंग होता है। क्रेविंग किस लिए होता है? क्रेविंग खाने भोजन के लिए क्रेविंग नहीं होता है, क्रेविंग नशीले पदार्थ के लिए क्रेविंग होता है। आज हम कहते हैं कि मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा है कि मैं वो है ना कि रात में आप दूध नहीं पिए तो आपको बिल्कुल क्रेविंग होने लगता है। तो वो एक नशा हो रहा है हमें, वो क्योंकि उसका वो जो प्रभाव है वो नशीला पदार्थ जैसा है, इसलिए वो नशा करा रहा है। तो हम उस समझ से बहुत दूर आ रहे हैं और हम ये सबको एक विकास और प्रगति मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यार, चूंकि हम लोग हर कोई आज इतना दूध पी पा रहा है इसलिए हमने विकास कर लिया है। पर वो दूध है या जहर है या क्या है, वो सब हमें समझना होगा, वापस उससे जुड़ना होगा। जो समझ थी हमारे पूर्वजों की क्यों थी, किस लिए थी, उससे जुड़ना होगा। हम कहते हैं देसी गाय को हम लेते हैं हाइब्रिड, हालांकि देसी गाय बहुत मुश्किल, अब मिलना भी बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि हमने उसका संरक्षण नहीं किया। देखिए, ये तो धरोहर है देसी गाय, जो पूर्वज इस धरोहर को बचाते आए हैं ओवर जनरेशंस। हमें भी वो धरोहर दिया गया था, पर शायद हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए, उसके वैल्यू को हम नहीं समझ पाए और इसलिए शायद संरक्षण नहीं कर पाए। आज हम उसको हाइब्रिड कर रहे हैं, तो देसी गाय का जो बच्चा होगा वो स्वाभाविक है कि देसी होगा, पर हम उस देसी गाय के वो बच्चा देसी गाय नहीं, हम उसको हाइब्रिड पैदा करवा रहे हैं कि वो हाइब्रिड पैदा हो। तो देसी गाय तो हम वैसे ही मार दे रहे हैं, वो पैदा होने से पहले ही मार दे रहे हैं, वो हाइब्रिड गाय पैदा हो रही है। तो हमें उससे समझना होगा कि क्यों आखिर वो जो हमारी पारंपरिक समझ थी वो क्यों थी कि देसी गाय का संरक्षण होना चाहिए, देसी गाय के ही दूध को लोग पीते थे, या जो खेतों में देसी गाय के मलमूत्र का ही यूज होता था, वो सब क्यों होता था, वो सब हमें वापस उससे समझना होगा। और अब विज्ञान है जो बहुत कुछ इस ओर इंगित कर रहा है और वो हमारी मदद भी कर रहा है कि हम समझें, तो हमें उसका भी सहारा लेना चाहिए। और हमारी जो ट्रेडिशनल जो विजडम है वो तो है ही हमें मदद करने के लिए। My next question from you would be, with almost every negative impact of corona pandemic, there is a positive side as well. It has helped our nature and environment to cure itself from the exploitation of mankind. Kindly share your views on it, ma'am. Yeah, that's a very good observation. So see, we've been locked down for some time now, and we can see how much nature has been able to repair itself, right? Mhm. तो हमें समझना होगा प्रकृति की जो शक्ति है, उस शक्ति को हमें समझना होगा। हम लोग वो शक्ति समझने की कोशिश करें, बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरी समझ तो जो अभी तक मुझे समझ में आया कि जो हमारे पूर्वज थे उस प्रकृति को हमसे कहीं अधिक समझते थे। हालांकि हमारे पास आज ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीक है, इंटरनेट है, सब कुछ है, पर प्रकृति को हम शायद उतनी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं और करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर उस क्रम में हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज हम कर क्या रहे हैं? प्रकृति का शोषण कर रहे हैं।
हम excuse me, हमारी एक ऐसी धारणा बन रही है कि विकास का अर्थ होना चाहिए कि हम प्रकृति के ऊपर विजय हासिल कर ले। तो हम प्रकृति से ही बने हैं। देखिए, पंचभूत से बने हैं, प्रकृति से बने हैं, हम कोई बाह्य नहीं है। हमें समझना होगा कि हम उसके एक हिस्सा हैं। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो शोषण हम हमारा कर रहे हैं। प्रकृति कोई बाह्य नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम, इसके मूल में है कि हम लोग सब प्रकृति का हिस्सा है। आप देखिए, मनुष्य है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। अगर सिर्फ मनुष्य रहेगा तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, ऑक्सीजन एक दिन खत्म हो जाएगा, तो मनुष्य नहीं बचेगा। पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन हवा में रिलीज कर रहा है। तो वो जो पेड़ है वो मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मरीन इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब होता है, क्लीन होता है, उसका 50% सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स क्लीन करते हैं। बहुत टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मरीन लाइफ में। तो जो हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो कहीं दूर समुद्र में कोई छोटा फाइटोप्लैंक्टन उसको ऑक्सीजन बना रहा हो। आप सोचिए कि कितनी सुंदर संरचना है ये, प्रकृति की कितनी सुंदर सोच है। हम सब इंटरकनेक्टेड है। ये है वसुधैव कुटुंबकम। उसको हमने आज क्या बना दिया है कि कहीं दूर एक देश में एक सामान होगा, दूसरा सामान कहीं दूसरे देश में होगा, तीसरा कहीं तीसरे देश में होगा, वो कोई चौथे देश में जाके असेंबल होगा, फिर वो जाके की वो सोच नहीं, वो प्रकृति के विरुद्ध की सोच। तो हमें जो ये जो सच में हम एक जो वसुधैव कुटुंबकम है और जो ये जो एक बना दिया गया है, उसको जो हमारी धारणा को, जो वसुधैव कुटुंबकम को जो नई परिभाषा दे दी गई है, वो दोनों के बीच के अंतर को हमें समझना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि देखिए, हर चीज जो प्रकृति की जो प्रोसेसेस होते हैं वो चक्रीय होते हैं, साइक्लिकल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वाटर साइकिल है। प्रकृति अपने वो सुनिश्चित करते रहती है कि जो भी हम कचरा कबाड़ा डाल रहे हैं वो उसमें साफ हो, वो वापस होते रहे। बहुत कुछ प्रकृति कर रही है। जैसा मैंने कहा, हम समझ रहे हैं, समझना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए उस क्रम में। तो हमें वो प्रकृति को वो समय देना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन बनाने का समय देना होगा। अगर हम वो समय नहीं देंगे तो प्रकृति बिल्कुल वो आप सोचिए कि क्या भार पड़ रहा है। तो प्रकृति, मैंने कहा, बाह्य चीज नहीं है। हम वो अगर प्रकृति को भार पड़ रहा है, अगर प्रकृति को क्षति हो रही है, तो क्षति हमें हो रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है जिस मात्रा में आना, तो वो ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमें हमारे बच्चों को चाहिए, वो जो बच्चों के बच्चों होंगे उनको चाहिए होगा। जब हम ही ये कर रहे हैं कि आज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो अब 3 पीढ़ी बाद तक हम सोच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो हमें वो समय देना होगा प्रकृति को। हमें आज हम ये नहीं कह सकते कि हमें विकास करना, विकास की दर हर साल बढ़नी चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया, एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि वो पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर वो उसको इसी धरती पे एग्जिस्ट करना है तो प्रकृति में ही एग्जिस्ट करना है। प्रकृति से बाहर तो कोई जगह है ही नहीं धरती पर। तो हमें वो सब समझना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसा कि कहा जाता है, जो मरीन लाइफ में जो क्षति हो रही है, ऑलरेडी वो जो क्षति हो चुकी है उसको रिपेयर करने में शायद 100 साल या अधिक लग जाए। बहुत जगह जो मिट्टी, जैसा मैंने कहा, मिट्टी अब धूल बनते जा रहा है, तो जो मिट्टी को ही रिपेयर करने में लोग अपना पूरा लाइफ उसमें डिवोट करते रहे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो मिट्टी हमारी खराब हो गई है उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लग रहा है, चीजों को वापस रिपेयर करने में। कुछ स्पीशीज हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि हर दिन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते जा रही है, तो वो तो वापस आएंगी कभी नहीं। जो भी स्पीशीज हैं वो कोई वजह से है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन मरीन इकोसिस्टम में उसको साफ कर रहा है। तो अगर वो फाइटोप्लैंक्टन वो 50% कार्बन डाइऑक्साइड वो साफ करता है, अगर वो खत्म हो जा रहा है,
क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो मरीन इकोसिस्टम, मरीन जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और फाइटोप्लैंक्टन्स ऑलरेडी मरने लग गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो नहीं रहेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कैसे बदलेगा। तो ये सब हमें समझना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो प्रकृति को समझना होगा, उसके जो चक्रीय प्रक्रियाएं हैं उसको समझना होगा। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपने प्रतिरोधक क्षमता को किस रूप में बढ़ा सके? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत व्यवहारिक भी प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें आज चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें हमेशा से चाहिए होता था, पर हम जैसा मैंने कहा, हमने विकास को इस तरह से परिभाषित कर दिया है कि अब इसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। सर्दी भी हो रही थी, लोग बीमार भी पड़ रहे थे, पर लोग काम पे निकलते थे क्योंकि छुट्टी लेने का समय नहीं था, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो काम करने वाले या कोई भी हो, किसी के पास समय नहीं था। हालांकि जब बताया जाता था कि साइंस और जब बताया जाता था कि टेक्नोलॉजी होगा तब आपके पास समय ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारा काम आपका टेक्नोलॉजी कर दिया करेगा, जैसे जो घर के काम है वो टेक्नोलॉजी से हो जाएगा और आपके पास समय अधिक होगा। पर वो सब मिथ्या था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हम सब जानते हैं किसी के पास समय नहीं होता है, बीमार हो जाए तो भी छुट्टी लेने का समय नहीं होता है। तो हम चूंकि उस शक्ति की जो आवश्यकता थी उसको हम नकारते गए एक तरह से। हमने कहा कि नहीं ये हम कोई दवा ले लेंगे और वापस चल देंगे काम पे। तो इस हाल में आ गए कि आज जब हमें विवश होना पड़ रहा है उस शक्ति की महत्ता को समझने के लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो शक्ति बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ही छीन हो चुकी है। आज हम में से हर कोई कह रहा है कि वो कहाँ से रोग प्रतिरोधक शक्ति कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो ये एक मूल अंतर है हमारे सोच में और पूर्वजों की सोच में, जहां वो अपना हर कार्य ये सोच के करते थे कि इसको मूल में रखना है, क्योंकि इसके बिना अस्तित्व नहीं है। आज हमने उसको बिल्कुल बैक बर्नर पे कर दिया है और उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। हमें पहले समझना होगा कि रोग प्रतिरोधक शक्ति है क्या। रोग प्रतिरोधक शक्ति या क्षमता वो हर चीज है जो हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे जो हम नहाने में यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपने घर को साफ कर रहे हैं, वो सब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति और क्षमता निर्धारित कर रही है। कोई एक चीज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज हमने कहा कि नहीं हम सब अक्रम बक्रम करते रहेंगे जो भी हम कर रहे हैं और एक कप काढ़ा पी लेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति आ जाएगी। नहीं, ये मिथ्या है, ऐसा नहीं है। हालांकि काढ़ा जरूरी है उस शक्ति और क्षमता के लिए, पर वो अपने आप में पूर्ण कारण नहीं है जो हमें वो शक्ति और क्षमता दे दे। तो हमें अब मूल में जाना होगा। जो भी हम खा रहे हैं जितना प्राकृतिक हो, जितना नेचुरल हो, जो हम रसायन और इससे दूर रहें, जो जंक फूड है, जंक मतलब कचरा कबाड़ा होता है, उससे दूर रहें। जो हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं वो भी आज रसायन है, तो उनसे दूर होना होगा। वापस हमें उस पारंपरिक समझ से जुड़ना होगा कि वो कैसे जो प्राकृतिक चीजें थी उससे लोग कैसे अपने शरीर को साफ रखा करते थे, बालों को साफ रखा करते थे, अपने घर को कैसे उससे साफ रखा करते थे। जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब भी हमारे इम्यूनिटी को उससे भी अंतर पड़ रहा है। तो वो भी हमें जो जितना हम उसको भी जितना उसमें भी जो कचरा कबाड़ा देख और सुन रहे हैं उसको भी हमें हटाना होगा। ये सब मिल करके जो है हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति और क्षमता को वापस से वो हमें इम्यूनिटी मिलेगी जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह से हमेशा से होनी चाहिए थी। एक
जो इसमें एक प्रैक्टिकली देखा जा सकता है, एक आयुर्वेदिक दिनचर्या हुआ करता था, हम सब उसको सर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वापस उसे जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस दिनचर्या में, बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत मदद करती थी। तो इन सब से हम जब वापस जुड़ेंगे तो वो स्वतः ही इम्यूनिटी हो जाएगी। देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रकृति ने इतनी सुंदर उसकी संरचना की है। जो भी बाह्य जो होता है, वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ भी बाह्य है, उसको एंटीजन कहा जाता है। और जब कोई एंटीजन का अटैक होता है हमारे ऊपर, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एंटीजन है। वो एंटीजन देख के स्वतः ही उसके उसके विपरीत का एक एंटीबॉडी बना देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, आज जब हम कहते हैं कि नहीं, हमें इस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक चाहिए, इस वायरस का एंटीवायरल चाहिए, इस वायरस का वैक्सीन चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं कि ये है तो उसका एंटीबॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम तो देखिए इतना शक्तिशाली है कि उसको मतलब ही नहीं, कोई भी आओ तो मेरा जो उसका अटैक है वो तैयार करने के लिए सक्षम है। हम बस उसकी शक्ति छीन कर रहे हैं। तो जब हम मूल में नहीं समझ रहे हैं कि वो प्रकृति ने हमें इतना सुंदर इम्यून सिस्टम दे रखा है, बस हम उसको छीन कर रहे हैं, इसलिए आज हम विवश हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको शक्ति दे दें तो वो तो कुछ किसी भी बाह्य आक्रमण से लड़ने के लिए वो बना हुआ है। आप देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर यहाँ संरचना है। तो हमें वो सब वापस से समझना होगा, वो छीन क्यों हो रही है। आज रसायन का एक ऐसा मिश्रण हम डाल रहे हैं थ्रू आवर विंड पाइप, थ्रू आवर फूड पाइप, थ्रू आवर स्किन, तो वो सब उसको छीन कर रही है शक्ति को। उसमें तो अपार शक्ति है, बस उसको हमें छीन नहीं करना है। आज के परिचर्चा को समाप्त करने से पहले रीटा जी, आपने जिस प्रकार से मेरे और सुदर्शन जी के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज लोग जिस प्रकार प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, उसको वापस फिर से प्राकृतिक होने के लिए जिस प्रकार आप प्रयास कर रही हैं और जागरूक कर रही हैं, इसके लिए आपका आभार। आपने जिस बेबाकी के साथ चीजों को तरह तरह के उदाहरणों के साथ हम लोगों को समझाया और ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समाज को जागरूक करने के लिए कार्य करते रहिए। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।